Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at NIT Polytechnic Nagpur for the Department of Electronics and Telecommunication. Today, I am going to deliver lecture on basics of electronic communication. And in this session, I will be going to discuss about block diagram of electronic communication system and electromagnetic spectrum. The course outcomes for this course as use relevant frequency ranges for electronic communication system. It means by using different frequency range, we can transmit the information from one way to another. Then, what are the learning outcomes? After the completion of this course, students should be able to understand the concept of communication along with signal, interpret the working of basic block diagram of electronic communication system, and identify the relevant frequency band of electromagnetic spectrum. Let's come towards the introduction. Before starting the introduction, there is a picture which shows the two persons, out of which one is the transmitter and the second one is the receiver. Both the person are trying to share their information with each other. It means sharing of information from one person to another. It is called as a communication. Let's come with this detailed description of communication system. So, what is communication system? All of you know about the communication. Now, we will discuss about the communication system. So, what is system? System एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको करनी है तो जो भी पैरामीटर्स आप यूज़ कर रहे हो उस पैरामीटर्स को बना के जो ब्लॉक बना है उसको बोलते हैं सिस्टम. अभी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो द कम्युनिकेशन सिस्टम इज communication system is the process. What it is the process of exchanging information. मतलब क्या करना है? एक दूसरे के पास की इंफॉर्मेशन शेयर करना है. मीन्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ exchanging information. The example for it like satellite communication, cable TV and the mobile telephone. What are the types of signal? अभी आपको पता है कि आप अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो आपको दिख रही है क्या? पर आप सामने वाले पर्सन को सुनाई दे रहा है. मतलब जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, वो कुछ ना कुछ सिग्नल के फॉर्म में जा रहे हैं. तो ये कैसे सिग्नल होते हैं? What are the different types of signal? There are mainly two types of signal, out of which one is the analog signal and the second one is digital signal. So, what is analog signal? अभी analog signal क्या होता है? तो analog signal ऐसा signal होता है जिसकी signal magnitude जो होती है वो vary होती है smooth way में without any break. देखो यहाँ पे दिया है it is the signal. It is the signal. Definition किसकी लिख रहे हैं? Analog signal की. तो क्या समझना चाहिए? It is the signal in which signal magnitude क्या? Signal magnitude varies in a smooth way without any break. Without any break with respect to time. मतलब ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट हो रहा है. बराबर है? इसीलिए बोला है विदाउट एनी ब्रेक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसे सिग्नल को क्या बोलेंगे अपन? एनालॉग सिग्नल. एग्जाम्पल में बोलेंगे अपन ऑडियो सिग्नल. ऑडियो सिग्नल मतलब जो बात मैं कर रही हूँ और आपके पास जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑडियो सिग्नल और वॉइस सिग्नल. देन व्हाट इज डिजिटल सिग्नल? ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है? तो इट इज द सिग्नल. इट इज द सिग्नल इन विच द सिग्नल मैग्नीट्यूड क्या है? सिग्नल मैग्नीट्यूड हैज a constant level for some period of time. कुछ टाइम के लिए एक कांस्टेंट लेवल तक उसका सिग्नल का मैग्नीट्यूड रहता है. देन इट चेंजेस सडनली. उसके बाद में क्या होता है? सडन चेंजेस होता है टू अनदर कांस्टेंट लेवल.
इट इज कॉल्ड एज द डिजिटल सिग्नल। समझ में आया? एग्जाम्पल में लिखेंगे अपन बाइनरी सिग्नल। अभी आपको डायग्राम पे से समझ में आ जाएगा। देखो पहले ही बोला था एनालॉग सिग्नल कि इट इज अ सिग्नल हुज मैग्नीट्यूड्स वैरीड इन अ स्मूथ वे। कोई भी ब्रेक आ रहा है क्या? इन अ स्मूथ वे विदाउट एनी ब्रेक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसके बाद में डिजिटल सिग्नल को बोला था कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लेवल के लिए सिग्नल का मैग्नीट्यूड वैरी होगा, उसके बाद में वो सडन चेंज होगा। मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो तुरंत किस पे आया? 0 पे। इसीलिए ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। समझ में आया? व्हाट आर द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ सिग्नल? एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को अपन कंटिन्यूस सिग्नल भी बोल सकते हैं और डिजिटल सिग्नल को अपन डिसकंटिन्यूस सिग्नल भी बोल सकते हैं। So the next part is block diagram of communication system। अभी ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? तो आप लोगों को सभी को पता है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। इसके लिए अपने पास 2 मेन ब्लॉक होने चाहिए। कौन से? वन इज द ट्रांसमीटर एंड द सेकेंड वन इज द रिसीवर। लेट्स कम विद द डायग्राम। दिस डायग्राम शोज द डिफरेंट ब्लॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ information source, input transducer, transmitter, channel, noise, receiver and output transducer। अभी इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मेरे जो वॉइस सिग्नल है वो आपके पास जा रहे, तो मैं अगर ट्रांसमीटर हूँ और आप बैठे रिसीवर हो तो मेरे पास से जो सिग्नल जा रहे वो कौन से सिग्नल है? वॉइस सिग्नल। मतलब मैंने जो इंफॉर्मेशन शेयर की दैट इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो कौन से टाइप्स पे होती है? तो इंफॉर्मेशन सोर्स में आप लोग पिक्चर भेज सकते हो, साउंड ऑडियो सिग्नल दे सकते हो, वीडियो सिग्नल दे सकते हो, कोई स्पीच दे सकते हो, कोई डेटा दे सकते हो। तो इसको अपन बोलेंगे क्या? इंफॉर्मेशन सोर्स। जैसे ही इंफॉर्मेशन सोर्स, जो इंफॉर्मेशन सोर्स है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। ये जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है दैट कम्स टूवर्ड्स द इनपुट ट्रांसड्यूसर। किसके पास जाएगा? इनपुट ट्रांसड्यूसर के पास। अभी इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? तो मेन फंक्शन जो होता है ट्रांसड्यूसर का वो होता है दिस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्या होता है? दिस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। देखो मेरे वर्ड पे ध्यान दो, कन्वर्जन ऑफ ओरिजिनल मैसेज सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दिस इज अ वर्क ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अभी यहाँ पे पहुंचा सिग्नल जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो सिग्नल है दैट कम्स टूवर्ड्स द ट्रांसमीटर। वो किसके पास आएगा? ट्रांसमीटर के पास। और ट्रांसमीटर के पास जो इंफॉर्मेशन आई दैट इंफॉर्मेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो किसके फॉर्म में रहेगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पास सिग्नल जो मिला ट्रांसमीटर को, वो ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा टूवर्ड्स द रिसीवर, टूवर्ड्स द रिसीवर। बट ये ट्रांसमीटर से निकला तुरंत रिसीवर के पास जा रहा है क्या? नहीं। इसके लिए अपन उसका एक मीडियम यूज करेंगे जिसको अपन बोलते हैं चैनल, जिसको अपन बोलते हैं चैनल। थ्रू द चैनल ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द रिसीवर। अब ये चैनल क्या होता है? तो चैनल आर नथिंग बट द फिजिकल मीडिया विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टूवर्ड्स द रिसीवर। ये जो चैनल होता है इसके 2 टाइप्स है, वन इज द वायर्ड चैनल और अनदर वन इज द वायरलेस। मतलब एक समझ लो कि एक आप यहाँ पे वायर्ड मीडिया भी यूज कर सकते हो या फिर वायरलेस मीडिया भी यूज। अभी इसमें एक और ब्लॉक दिया है दैट इज नॉइज। मतलब जब भी सिग्नल ट्रांसमीटर से लेकर के रिसीवर तक जा रहा है थ्रू द चैनल, उसमें ऐड हो रहा है नॉइस। नॉइस मतलब क्या? जो सिग्नल मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरे जो सिग्नल है वो कौन से है? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में अगर नॉइस ऐड हो रहा है तो सिग्नल गेटिंग डिस्टर्ब। सिग्नल क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। मतलब जो भी ओरिजिनल सिग्नल है दैट कैन नॉट बी रीच टूवर्ड्स द रिसीवर। अभी नॉइस क्या होता है? द अनवांटेड सिग्नल, द अनवांटेड सिग्नल gets added towards the channel, gets added towards the
चैनल, जिसकी वजह से क्या होता है, सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है। अभी नेक्स्ट ब्लॉक है दैट इज रिसीवर। रिसीवर में क्या हो रहा है, सिग्नल के पास जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, डिस्टर्ब सिग्नल आएगा यहाँ पे, क्योंकि कौन ऐड हो गया है, नॉइज। अभी ये डिस्टर्ब रिसीवर सिग्नल, डिस्टर्ब सिग्नल को आपको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आउटपुट ट्रांसड्यूसर। उसकी वजह से क्या यूज कर रहे हैं अपन, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अगेन आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या होगा, जो भी डिस्टर्ब ओरिजिनल सिग्नल, डिस्टर्ब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए हैं उसको ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है सभी को? तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को फिगर शोज कर रही है कि कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम which consist of information source, input transducer, transmitter, channel, receiver, noise and output ट्रांसड्यूसर। उसमें से इनपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, कन्वर्जन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बराबर है, एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो वी आर यूजिंग हियर ट्रांसड्यूसर। उसके बाद में ट्रांसमीटर का काम क्या था, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम ट्रांसमीटर टूवर्ड्स द रिसीवर। रिसीवर का काम क्या था, उसको रिसीव करना। और ये सब प्रोसीजर जिसके थ्रू हो रहा था उसको बोल रहे थे अपन चैनल। क्लियर? नेक्स्ट it is nothing but your electromagnetic spectrum. First of all we must have to know about the electromagnetic. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट इज अ वर्ड कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। किसका कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ जब भी प्रोपोगेट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तब एक वेव मिलता है, दैट वेव इट इज कॉल्ड एज द EM wave. That wave it is called as the EM wave, and each EM wave having the frequency ranges from highest level towards the lowest level or from lowest level towards the highest level. That arrangement it is called as the spectrum. उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम। तो देखो यहाँ पे it is an entire range of frequencies of EM wave and it consists of electric and magnetic field which vibrate thus making waves. यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, देखो आपको चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट रेज दिए हुए, जहाँ की फ्रीक्वेंसी जैसे गैमा रेज बोल रहे, एक्स रेज बोल रहे, अल्ट्रावायलेट रेज बोल रहे, यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम भी दिख रहा है, इंफ्रारेड विच इज यूज इन द टीवी रिमोट, माइक्रोवेव, FM रेडियो, AM वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो देखो यहाँ पे ये जो गैमा रेज होते हैं और एक्स रेज होते हैं, इसका एक फंडा है, आप इसको याद कैसे रखोगे, तो आपको हर एक इसका एक एक लेटर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया GXU VI और यहाँ पे M और यहाँ पे एक रेडियो वेव। बराबर है, रेडियो वेव इट इज नथिंग बट योर लॉन्ग रेडियो वेव्स, जो भी आप लोग टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एज द रेडियो वेव। और वही आप अगर विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब क्या, जो आप लोग अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। तो आप लोगों को सभी को पता है, जैसे ही बादल छा जाते हैं आप लोग एक इंद्रधनुष का पट्टा देखते हो, जिसमें आप लोगों को कलर्स दिखेंगे, विबगॉयर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये फ्रीक्वेंसी को याद कैसे रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंसेप्ट हमेशा के लिए याद रखना है, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जैसे ही आप लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे वैसे ही आपकी वेवलेंथ कम होती जाएंगी। क्लियर एवरीवन? लेट्स कम टुवर्ड्स द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे फ्रॉम वेरी लो फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको चार्ट में दिख रही है। अभी इस फ्रीक्वेंसी रेंजेस के साथ आपको इसका वेवलेंथ रेंज और उसका एप्लीकेशन क्या है ये भी यूज बताया जाएगा।
अभी पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पेपर में पूछा जाता है राइट अ फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द वेरी लो फ्रीक्वेंसी। किसके लिए पूछा जाएगा? वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अभी आप लोग बोलोगे मैम इतना बड़ा याद कैसे रखना है? तो देखो कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसी रेंज में देखोगे फ्रॉम वेरी लो टू एक्सट्रीमली हाई लिख लेना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपके पास है 3 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज। वहीं आप देखोगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही फ्रॉम 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज। अगेन फिर से 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज, अगेन फिर से 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300। समझ में आया? ऐसे क्रॉस में आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखेंगी, सेम वही तरीके से आपको वेवलेंथ 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर इट मीन्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, अगेन 10 किलोमीटर मतलब 100 मीटर। समझ में आए? तो यहाँ पे ये ऐसा दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस दिए हुए। क्लियर? सो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का 2 टॉपिक मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है। यहाँ पे कैसे दिस लेक्चर समराइजेस एज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग विथ सिग्नल। मतलब आपको समझ में आया कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या होते हैं। देन इंटरप्रेट द वर्किंग ऑफ बेसिक ब्लॉक डायग्राम। We have learned about the working of basic block diagram of electronic communication system. We also identified the relevant frequency band of electromagnetic spectrum. इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चन सच एज व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल, how the transmitter and receiver works in the block diagram of communication system, and what magnetic spectrum in different way. Thank you so much for listening the given lecture. In the next lecture we will study about transmission mode and their types, noise and their types. Thank you so much.